Welcome back to all my dear students. Nice to interact with all of you after so many long time. Uh, in this video, I am going to discuss about the physiology and biochemistry, which is your third paper of BSc second year syllabus. Okay, so what the basic concept of physiology and what is the meaning of biochemistry? What the topic you will study under the physiology and biochemistry respectively? I will discuss all these things in this video lecture. Okay, so if you really want to know the basic concept of physiology and biochemistry, so stay tuned and watch this video till the end. Okay, so what the mean of physiology and biochemistry? Physiology is the branch of biology which deals with the study of the system biology, either plant or animals. But in this case, in your syllabus, that is the zoology, that means we totally discuss about the animal physiology with the reference of a human physiology. So physiology is the branch of biology which deals with the study of system biology. Okay, system biology. That means what you will study in the under the physiology, that is about the digestion, respiration, excretion, okay, nervous system, hormonal system, so basically in physiology you will study about the various different types of system physiology, that is the system, that means digestive system, respiratory system, excretory system, hormonal system, nervous system, etc., and all their mechanism, how our body perform different type of roles and their biochemical reactions inside our body. Okay, biochemistry is the study of the chemistry of biomolecules. That means, as we all know, our body is made up of a cell, and cell is made up of finally different type of molecules like as a protein, carbohydrate, lipids, vitamins, enzymes, right, etc. So in biochemistry, all these molecules will discuss in details and how they perform the important role and what are their specific nature, how they control our body physiological activities, etc. So basically, physiology and biochemistry is a branch of a biology which deals with a study about the various different organ system in our body and how they perform their functions and what their parts and what their role in our body. And biochemistry, they will discuss in later in video. Biochemistry deals with the study of a different type of metabolic reactions and their chemical compositions and their effect in the body. Okay. सो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंडर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, vitamins, lipids, etc. So finally, आपको इस पेपर को पढ़ करके आपके पास जो आइडियाज़ हो जाएंगे वो ये होंगे कि आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो किस तरीके से आपकी बॉडी के इनसाइड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, क्या कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या है फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे. So one of the most important and interesting topic of a biology field. So being a biology student, you all should know about the basic concept of the physiology and biochemistry. हालांकि आपको यहाँ पे BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में काफ़ी
डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और होप्स हो कि आप सब लोगों ने 11th-12th की क्लासेस में जो आपको बेसिक फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया होगा वो आप लोग जानते होंगे। बट यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करूँगा, दैट मीन्स 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, कि ताकि आपको जो स्टूडेंट का क्लास वो छूटा हुआ हो, नहीं पढ़ पाए हों, उनकी भी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएँ, और जिन्हें पता होगा वो आसानी से पेशेंसली इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो आज के बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम हैं उनके एक ओवरऑल के बारे में, और इस डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, राइट, इन सब के बारे में क्या है स्टडी करेंगे। सो ओवरऑल ये कि आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई पर्टिकुलर के स्पेसिफिक टॉपिक नहीं डील किया जाएगा, आपको एक ओवरव्यू आइडिया दिया जाएगा कि फिजियोलॉजी का क्या क्या रोल हो सकता है, क्या क्या चीज़ों का आपको स्टडी करनी है, क्या फिजियोलॉजी का मतलब हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री में किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है, कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग पहले फिजियोलॉजी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हम सब लोगों की जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है कि क्लासिफिकेशंस ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एनिमल सिस्टम में बॉडी के ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। जैसे आपको पढ़ाया जा चुका है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारी बॉडी जो होती है वो बेसिकली सबसे मोर कॉम्प्लेक्स में आती है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ कंपाइल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, राइट। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंट 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जिससे मिल करके हमारी बॉडी पूरी क्या करती है, कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म करती है। जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने नाम सुना होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का, इंटीग्रेटरी सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये सब क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें डिफरेंट कई सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम से मिल करके हमारी बॉडी क्या होती है, रेगुलेट होती है। तो फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं और उनका क्या रोल होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पार्ट है, कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है। तो फिजियोलॉजी हमको बताता है इस तरीके से कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और क्या उनका रोल होता है, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं किसी सिस्टम के बारे में नहीं आपको बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ये बात हो रहा है कि बेसिकली फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ों का आपको इसके अंडर में पढ़ना है। सिलेबस आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है और आप उसको देख लीजिए। आपके सिलेबस में अलग अलग यूनिट में अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे सीरीज से। पहले फर्स्ट यूनिट में आपको दे रखा है बेसिक इंट्रोडक्शन आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो आज हम लोग उसी के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। तो अभी ओवरऑल आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि बेसिकली फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। दैट मीन्स सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाई फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, तो सिंपली आप बता सकते हैं फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन साइड अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम हैं, उनके स्टडी के बारे में हमको बताता कौन है, दैट इज द फिजियोलॉजी। ओके, बायोकेमिस्ट्री का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके केमिस्ट्री के बारे में स्टडी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि किसी भी लिविंग सिस्टम को क्या करते हैं, लाइफ प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो सेल होता है वो बेसिकली क्या है, उसमें एक साइटोप्लाज्म होता है, मीन्स प्रोटोप्लाज्म, और उस प्रोटोप्लाज्म में क्या है, कोई केमिकल होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो केमिकल क्या है, दैट इज़ द बायोमॉलिक्यूल, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा। ये सब बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कि किसी भी सेल्स को लाइफ प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स को बेसिकली हम बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ओके,
सो देख लेते हैं कि बेसिकली हाँ बायोकेमिस्ट्री में जो जो मॉलिक्यूल्स उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और फिजियोलॉजी में जो ऑर्गन सिस्टम है उनका क्या क्या रोल होता है। ओके तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कहाँ पे किया जाएगा, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री में। सो फर्स्टली व्हाट इज द मीन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। So those molecules which provide life of cells is known as the biomolecules. Biomolecules basically कई different types के यहाँ पे मेजरली कैटेगराइज किए जाते हैं, जिसमें नंबर पहला क्या है, that is the protein. Second है that is carbohydrate. Third one is the lipid. Fourth is the nucleic acid. Enzyme. And vitamins. ओके सो ये बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिन नेम हैं जिनका की जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको इनके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री की में जो पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बने होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएगा, राइट। सो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि इन सभी मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी में रोल क्या होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स। होप सो आप सब लोगों ने प्रोबेबली आप लोगों ने नाम इसका सुना ही होगा, इसमें कोई न्यू थिंग्स नहीं है। ओके प्रोटीन्स का अगर हम लोग फंक्शन देखें तो बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में, आपने कभी नोटिस किया है कि आपको कभी चोट लग जाती है या फिर कहीं आपको जर्क हो जाता है तो आपकी स्किन थोड़े से रफ ख़राब हो जाती हैं, बट आफ्टर सम डेज आप देखते हैं कि धीरे धीरे होते होते वो क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। दैट मीन्स वो सही हो जाता है। जब भी कहीं आपको चोट लगा होता है या कहीं पे आपको स्क्रैचेस लगे होते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो बेसिकली प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, राइट। दैट मीन्स रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है दैट मीन्स आप में आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो स्किन के कलर है वो भी क्या है, एग्जांपल किसका, प्रोटीन्स का, राइट। डिफरेंट मतलब वो जो प्रोटीन्स होती है इसे हम स्किन प्रोटीन्स या मेलानिन के नाम से जानते हैं। उन प्रोटीन की वजह से ही हमारी बॉडी के डिफरेंट क्या हैं, कलर्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई बहुत ज़्यादा साफ है, कोई बहुत ज़्यादा फेरल है, इस तरीके से। तो ये एक एग्जांपल किसका है, प्रोटीन्स का। हमारे हेयर के जो कलर हैं वो भी एक एग्जांपल किसका है, दैट इज़ द प्रोटीन्स का। आपके ब्लड का जो कलर है वो भी एग्जांपल किसका, दैट इज़ द प्रोटीन्स का। सो प्रोटीन्स आर द वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी विच बिल्ड अप द ऑल बॉडी पार्ट्स। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिपेयर सिस्टम में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। रिपेयर सिस्टम से मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी कोई टिश्यू या कोई सेल्स अगर डैमेज हो जाती है तो उस डैमेज सेल्स को रिक्रूट करके, दैट मीन्स उसे साइड करके फिर से एक नई चीज़ को बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, राइट। तो आपके बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है दैट मीन्स फिजिकली, और आपकी बॉडी में जो डैमेज टिश्यू हैं वो जो रिपेयर हो रही हैं, इट्स ऑल आउट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। सो प्रोटीन्स आर द रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स ये आपके बॉडी के खराब टिश्यूज़ को रिपेयर करने में काम करता है और आपके बॉडी को बिल्डअप कराने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके सो प्रोटीन का फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज़ ये हमको हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, दैट मीन्स ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करने का सबसे फर्स्ट सोर्स माना जाता है, राइट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, इवन अगर आप रेस्ट कंडीशन में लेटे भी हैं तब पर भी आपकी बॉडी को नीड किसकी, एनर्जी की है। सो एनर्जी इज द फंडामेंटल नीड ऑफ आवर बॉडी। तो उस एनर्जी की फुलफिल या डिमांड जो होती है उसको पूरा कौन कर रहा है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, राइट। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, राइट। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज टू प्रोवाइड द एनर्जी। किसी भी चीज़ के लिए हमारी बॉडी को कोई भी फंक्शन से परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, दैट इज द एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, बिल्डिंग और रिपेयर मॉलिक्यूल, मीन्स पार्टिसिपेट इन रिपेयर एंड बिल्डिंग
जबकि इसका काम क्या होगा, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देने का क्या करता है, काम करता है। लिपिड, लिपिड मीन्स फैट, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा फैट का मतलब, राइट। सो फैट हमारी बॉडी का एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स होता है जिसका काम बेसिकली होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ओके, टेम्परेचर मेंटेन से मतलब क्या है, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दे के बात करूँ कि बहुत ही कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे पेंगुइन का नाम आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली सुना होगा, राइट। उनकी बॉडी में अगर देखा जाएगा तो लिपिड का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ओके, एज़ कम्पेयर टू हम लोगों के। तो लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसे हम थर्मो रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। थर्मो रेगुलेटर से मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज द टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला या मेंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स को हम थर्मो रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। तो इसका काम जिसके क्या होगा, टू मेंटेन द टेम्परेचर। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और इन्फॉर्मेटरी मॉलिक्यूल्स के नाम से इसको हम जानते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ा भी दिया गया जेनेटिक्स में, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली हम दो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज आरएनए एंड डीएनए। क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। एंजाइम्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, राइट। तो जो फंक्शन कैटलिस्ट का होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कैटलिस्ट क्या होता है, राइट। कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है वही बेसिकली क्या है, बायोकैटलिस्ट का फंक्शन होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। उन सभी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इन्हांस करने के लिए जिस बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत होती है, दैट्स नोन एज द एंजाइम्स। सो एंजाइम्स मीन्स व्हाट, एंजाइम्स आर द molecules which increase the rate of reactions which occur inside our body। हमारी बॉडी के अंदर में पाए जाने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जिस बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द नोन एज द बायोकैटलिस्ट। सो डेफिनेशन मैंने बता ही दिया है, बट फिर भी आप लोग बताएंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, ओके। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स बेसिकली ये लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दे आर द ट्रेस मॉलिक्यूल्स, मीन्स इनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, बट दे आर द इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, राइट। ये इनका कंसंट्रेशन बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि विटामिन्स के डिफिशियंसीज हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा, बेरी का नाम सुना होगा, स्कर्वी का नाम सुना होगा, रिकेट्स का नाम सुना होगा, राइट। पर्निशियस एनीमिया का नाम सुना होगा। तो ये सभी बेसिकली जो डिजीज़ हैं वो विटामिन्स की क्या है, कमी से हो जाते हैं। तो विटामिन्स आर द दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट, बट दे आर द एसेंशियल फॉर द लाइफ सर्वाइवल। बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका पाया जाना और इनकी प्रॉपर जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है उनका होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी बॉडी सफ़र करना स्टार्ट कर देती है वेरियस काइंड ऑफ डिजीज से, ओके। सो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनका लिस्ट था, और इनका क्या प्रॉपर एक फंक्शन होगा, दैट मीन्स फाइनली कि किस तरीके से इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स का कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का जो ग्रोथ होगा वो रिटार्ड हो जाएगा, और आपके बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन से परफॉर्म किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपके स्किन का जो कलर है वो भी एक प्रोटीन का एग्जांपल है, हेयर का जो कलर है वो भी एक एग्जांपल है प्रोटीन्स का, ब्लड का जो कलर है वो भी एक एग्जांपल है प्रोटीन्स का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स का जो कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर के काम करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोटीन्स की अगर कमी हो जाती है तो उस प्रोटीन का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, रिटार्ड हो जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी में कुछ डेविएशंस आ जाएंगे, आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग और रिपेयर सिस्टम होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं चोट लगता है तो फिर आपको उसमें ठीक होने में समय लग सकता है, आपकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पता लगा आप एज तो होती आ रही है लेकिन आपकी प्रॉपर बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, राइट। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाएगी तो बेसिकली आपकी बॉडी क्या होगी, लो एनर्जी फील करेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगा तो आप किसी चीज़ के लिए एक्टिवेट नहीं रह पाएंगे, कोई काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। सो बेसिकली इनका प्राइम जो फंक्शन होगा क्या है, टू प्रोवाइड द एनर्जी। लिपिड का अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर लिपिड का अमाउंट अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आप सही तरीके से अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं,
राइट। फिजियोलॉजी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोस्टैटिस या होम्योस्टैटिस। वो एक जो प्रोसेस होती है कि कैसे हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली क्या होती है मेंटेन की हुई होती है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी आ जाए या समर के सीजन में 43-45 भी आ जाता है, राइट। उस मैकेनिज्म को भी हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे। तो और न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फॉर्मेशंस को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, कैरी ऑन करता है, मीन्स पास आउट करता है। आरएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है हमारी सेल्स में, जिनको कि हम बाद में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। एंड लास्ट आता है आपका एंजाइम, जो कि आपको बता दिया, विटामिन के बारे में भी डिस्कस कर दिया। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया रहा कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, जिनके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है, ओके। सो अब आते हैं कि फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में अगर जानना है तो आपको कुछ वर्ड्स बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। लाइक नंबर फर्स्ट, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सेल्स के इनसाइड में बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, आप पढ़ेंगे भी। जैसे अगर आप लोगों ने आपको अगर आइडिया होगा थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, टीसीए साइकिल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, जो कि हमारी बॉडी में क्या है होते रहते हैं, राइट। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, राइट। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज व्हाट, इट्स ऑल द टोटल केमिकल रिएक्शंस अगर इनसाइड द बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में या बॉडी में पाए जाने वाले टोटल जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आइदर वो ब्रेक डाउन करने वाले हों या बिल्डअप करने वाले हों, उन सभी टोटल केमिकल रिएक्शंस के समरी को या समेशंस को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, ओके। सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज व्हाट, इट्स अ टोटल ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ओके। सो कैटाबॉलिज्म का सिंपली मीन ये होता है, दैट मीन्स नाम से समझ में आ रहा है कैटाबॉलिज्म, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंपल वन में या सिंपलर में फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। जैसे मैं एग्जांपल की बात अगर करूं तो सपोज अगर यहाँ पे मैं बात करूं ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का एक रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये पॉलीसेकेराइड कौन सा नया टर्म आ गया। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड क्या होते हैं। सिंपली अभी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर एक ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सेकेराइड को, तो ऐसे कई सारे सर्कल यहाँ पे आपस में क्या होंगे, अगर कंबाइंड होंगे तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज द पॉलीसेकेराइड। ढेर सारे सेकेराइड के शुगर के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइंड होंगे मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो ग्लाइकोजन एक बेसिकली पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जब हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी एक्स्ट्रा, जैसे सपोज कीजिए हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है उससे हम डेली मान लीजिए 4000 किलो कैलोरी जूल को खर्च करते हैं, राइट। और आपने जो खाना खाया है उससे मान लीजिए 4200 के आसपास एनर्जी आपको मिलती है। तो जो 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो स्टोर हो जाती है तब के लिए जब आपके पास खाने पीने का सुविधा करना हो, तब उस टाइम पे यूटिलाइज हो जाती है, राइट। तो 200 जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये ग्लाइकोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बेसिकली पॉलीसेकेराइड का, ये स्टोर्ड फॉर्म में स्टोर रहता है। जब कभी हम स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, मतलब आपको लंबे टाइम तक कोई डाइट या कोई मील अगर नहीं मिल पाता है और आप उस टाइम पे भी काम कर रहे होते तो आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। तो ये जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर्ड है
वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर के कन्वर्ट किस में हो जाता है, दैट इज द ग्लूकोज में। कई सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल किसका हो सकता है, दैट इज द कैटाबोलिज्म का। यहाँ पर आपने ये देखा कि ग्लाइकोजन जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, ग्लूकोज में, जो कि क्या है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कैटाबोलिज्म। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच occur inside our body in a way that a complex molecules will convert into the simpler one molecule is known as the catabolism। सभी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि बेसिकली इस तरीके से पाए जाते हैं जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके सिंपलर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। एनाबोलिज्म इसका सेम रिवर्स है, दैट मीन्स व्हाट, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिल करके, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिल करके अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करें या लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एनाबोलिज्म। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ये सेम एग्जांपल ले सकते हैं, ढेर सारे ये क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, राइट। यहाँ पे जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज द ग्लूकोज को। तो कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके सिंपली यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं और ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो सिंपली मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल से पॉलीसेकेराइड का बनाना ये क्या कहलाएगा, दैट इज द एनाबोलिज्म। और पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड का बनना ये क्या कहलाएगा, दैट इज द कैटाबोलिज्म। सो व्हाट द मीन ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। मेटाबॉलिज्म मीन सिंपली कोई भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस पाए जा रहे हैं उनके समेशंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ऐसे रिएक्शंस जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, कैटाबॉलिज्म, और ऐसे रिएक्शन जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एनाबॉलिज्म। ओके, सो that's all about the basic concept of basic introduction of physiology and biochemistry, what you will understood the study about under the physiology and biochemistry, right। ये आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का, और आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। फिजियोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डिफरेंट वेरियस सिस्टम एंड देयर रोल्स, क्या क्या उनका फंक्शन होता है और उनका क्या किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन स्टार्ट करेंगे दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, so that's all guys, hope so it will help you, and if you have any doubt and queries, so please put your informations and put your queries in the comment box of the group, so I will reply you. So thanks for watching this video.